chapter. It is This is incomplete. affirmative sentence. It is incomplete It answer. यह Please. sentence No, no, no. उत्तर पूर्ण नहीं है. Something is missing. You said this sentence is related to B chapter. This is not a complete answer. Something is missing in this sentence. चलिए, सौम्या, this are you okay. ready to make this sentence? Sir, what is the sentence? You are not audible. Sakshi, are you ready to make this sentence? Yes, sir, I will try. Sir, I am ready to make this sentence. You guys are very low. What is the problem? मैम चलिए मैं आपको सुधरवाता हूँ. आप बोलिए दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू बी प्रेजेंट. Yeah. I remember, sir. You are This clearly sentence, audible? Please. this sentence is related to be chapter, be No. present. This Yeah. sentence is this sentence is related to be present. Be present. Present. Yeah. Please go And ahead. Please go ahead. this sentence is affirmative sentence. नहीं ये गलत हो गया. बोलिए दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस. This is an affirmative sentence. करेक्ट. Uh, Firstly, I will take subject and the subject is I. लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक. Firstly, I will take subject. सब्जेक्ट है बहुत सारे. पूरी दुनिया में 34 करोड़ Sorry, सब्जेक्ट हैं. तो sorry. हम Da लगाएंगे. यस. Firstly, I will take the subject and the subject is I. करेक्ट. Then I will take the main verb and the main verb is am. And then I will take adjective or noun and oppose सर खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ अपोज अगेंस्ट यस. and lastly I will take sir I don't know English meaning of भ्रष्टाचार. ओके. आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि वो क्या है, फिर मैं उसका इंग्लिश मीनिंग बता दूँ. Noun. Lastly I will take noun and सौम्या, at the last सौम्या, प्लीज यू मेक दिस सेंटेंस. I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject. हाँ ये बहुत अच्छा किया तुमने. मैम यहाँ पे हम आपको इस पूरी प्रोसेस में एक जगह दिस और एक जगह इट रखवाना सिखा रहे हैं. आप फिर से सुनिएगा. सौम्या, स्पीक अप एंड पुट योर माइक नियर योर माउथ.
This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Then I will take the main verb, and the main verb is am. Thereafter, I will take the adjective, or the adjective is against. Lastly, I will take the noun, and the noun is corruption. At the end, I will put full stop, and the sentence is I am against the corruption. Very nice. But description is wrong, Soumya. Let's see Sakshi, how Sakshi make it. Sakshi. But put your Okay, sir, I have to make it. mouthpiece. Sakshi, will you put your mouthpiece near your mouth so that we can listen something? Okay, sir. Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an अरे एक affirmative सेकेंड sentence. रुकिए, एक सेकेंड रुकना दो। सौम्या और साकिब आप लोग बताएं, जिससे साक्षी इज नॉट क्लियरली ऑडिबल, तो इज इट ए टेक्निकल प्रॉब्लम और व्हाट? Her headphone has a problem. ईयरफोन, ओके। Earphone and नेटवर्क सेंटेंस, fan. सर मैं ईयरफोन नहीं लगाए हुए हूँ. So नेटवर्क fan is running in background. okay, fan is running in the background and it is making so much noise. This is also correct because whenever Soumya starts speaking, a particular tick 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 noise comes, and when she switches off the fan, it stops. Right. Okay, Sakshi, go ahead. Okay, sir. I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is am. And then I will take the adjective, and the adjective is against. Thereafter, I will take the lastly I will take the noun, and the noun is corruption. Very nice. But still the description is wrong. Sakit, I have written Hindi sentence. Now, would you like to make this? Yes, sir. I would like to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take. You know, you can adjust your screen according to your need. क्या आपको पता है आप अपनी जरूरत के मुताबिक स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं if visibility is not clear? Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Then I will take the main verb, and the main. You are not clearly visible, you are so low. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Then I will take the Sakit, main verb. Sakit, just a minute. Will you please restart so that Mehta madam can also listen the starting Okay, sir. sentences? Sir, I would like to make this sentence. This No, sentence let is, me start. Who has to make this sentence? sir, I have to make this sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? सर, यह वाक्य मुझे बनाना है. Go ahead, बनाइए. This sentence, this sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, अभी सुल्तान ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया था, साकिब तुमने सुना नहीं. साकिब, कल हम और मेहता मैडम उस वीडियो को देख देख कर चर्चा कर रहे थे जिसमें तुम, सौम्या और मेहता मैडम थी. तो हमने उसकी बारीकियां मेहता मैडम को बताई.
कि देखिए साकेत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जो सामने अगला क्रम लिखा है उसको वो इंटरेक्टिव या इडियम बोलना है। केवल सौम्या नोटिस कर रही थी कि वो जो बोल रही हैं या जो तुम बोल रहे हो वो सही है या गलत है। तुम एक के बाद एक बोले जा रहे थे, वो वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हो। हम उसको दिखा दिखा के पॉज कर करके मैडम से एक एक चीज चर्चा कर रहे थे। और एक बार ऐसा हुआ कि सौम्या ने एक सेंटेंस बोला इडियम की तरफ देखा ही नहीं, उठा के सेम टू सेम रिपीट कर दिया। अब चूंकि वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो सौम्या अचानक चौंक गई, उसके चेहरे के भाव बदले, हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हें कोई मतलब नहीं था, तुम अपना अगले इंटरेक्टिव को देख देख के अगले इडियम को बोले जा रहे थे। लेकिन सौम्या ने फिर कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना कैमरा ऑफ किया। मैडम ने देखा ही नहीं क्योंकि वो स्क्रीन की तरफ देख नहीं रही। तुम जरूर अभी स्क्रीन की तरफ जैसे देख रहे हो वैसे देख रहे हो। तुमने देखा सौम्या ने कैमरा ऑफ कर लिया तो तुमने भी कैमरा ऑफ कर लिया। मैडम को पता ही नहीं चला। वो एक के बाद एक इंटरेक्टिव सेंटेंस देख देख के बोलते जा रहे थे, तुम भी एक के बाद एक बोलते जा रहे थे। Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is am. And then I will take the adverb, and the adverb is against. Thereafter, I will take the noun, and the noun is correction. Well tried, beta, but it is description is still wrong. Anybody else wants to try? Sir, I can. Please go Can I ahead. try? Please go ahead. This sentence is related to past, sorry, present, be present tense. Be present. Present tense. This sentence is, नहीं है सर, हाँ सॉरी. This sentence is related to be present. Firstly, and this it is affirmative sentence. Firstly, आर्टिकल लगा I लीजिए। will take. It is the affirmative ये गलत आर्टिकल। sentence. This is the wrong It is a affirmative. It is a affirmative sentence. ये It is an affirmative affirmative. हमें कुछ अजीब सा लगा। It is. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Then I will take main verb, and the main verb is आप हर the बार am. you are missing lipstick every time. Then I will take the main verb, and the main verb is am. Later on, I will take main verb, sir. Later on, I will take the adjective, and the adjective is against. Later on, I will take preposition, and the preposition is for. And lastly, I will take noun, and the noun is correction. Very nice. At the last, I will put the full stop, and the sentence is I am against for correction. Thank you. Mute yourself. Now, anybody else
wants to try, still the description is wrong. Okay, let's do one thing. Soumya, are you free talking to somebody? No, sir. Okay. Sir, Can you can I tell? try one more time? I was waiting and I thought I should drop this sentence. We will make it again. But if you are ready, so welcome. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is am. I will take the preposition, and the preposition is against. Lastly, I will take the noun, and the noun is corruption. At the end, I stop in the sentences. I am against corruption. दोस्तों इसको देखिएगा ऐसी छोटी छोटी चीजें अखबार में हमें देखने मिलती रहती है इज इट विजिबल टू यू No, sir. Sir, it is. Yes, sir. ओके It is visible. सौम्या Yes, sir. स्पीक I am स्पीक दिस against corruption. साकिब I am against corruption. मैम I am against. ओके लेट्स प्ले another round as a questioning answer. Give the same answer. Soumya, who is against corruption? Sir, I am against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? सर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ. साकेत भैया, who is against corruption? I am against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैडम. You are not audible भैया. I am against corruption. मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ. Am I audible now? Yes. Madam, who is against corruption? I am against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? Am I audible? Yes, yes, you are audible. मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ. सर, who is against? Sorry, Sakshi. यहाँ से हम नया Sakshi, राउंड शुरू कर who रहे हैं. is against corruption? यहाँ से नया राउंड शुरू कर रहे हैं. मुझे दोबारा इसलिए बोलना पड़ा कि मेहता मैडम ने दो बार बोल दिया था. तो मैं एक नया सब्जेक्ट रख रहा हूँ, आप भी नया सब्जेक्ट रखिएगा. 2-3 राउंड खेलिए. मैम, honest people are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? ईमानदार लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ. सौम्या, who is against corruption? Some ministers are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन?
कुछ मिनिस्टर्स भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। साकिब भैया, हु इज अगेंस्ट करप्शन? Narendra Modi is against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। साक्षी, who is against corruption? She is not present, as you can see on this screen. Okay, sir. So, sir, who is against corruption? Mehta madam is rest. Okay. Madam, who is against corruption? The pupil who love the country against the corruption. चैप्टर Sorry, इसमें madam. आया ही नहीं मेहता मैडम, आपके पूरे वाक्य The में ये pupil, जो चैप्टर है वो आया ही नहीं। the तो pupil चैप्टर चैप्टर पूरे सेंटेंस में चैप्टर क्या है? is इस R चैप्टर आएगा, R नहीं, नहीं नहीं, इस आज चैप्टर नहीं है बेटा। चैप्टर का नाम कौन बताएगा? B B ये चैप्टर। B चैप्टर। Madam, who is देशभक्त against? द आप प्यूपिल। सिंपल आंसर से शुरू ओके कीजिए। ओके। साकेत का देशभक्त Madam, देशभक्त साकेत का कम मतलब अगेन कम अगेन। madam, who is against corruption? देशभक्त लोग आर अगेंस्ट द करप्शन। मैडम, भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? देशभक्त लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। You can say लोग in इसको पढ़ें एक बार। आई एम अगेंस्ट करप्शन। और आप हर बार आंसर में क्या लगा रही हैं, आपको फील हो रहा है? आप हर बार उत्तर में क्या लगा रही हैं अपने मन से एक्स्ट्रा, आपको फील हो पा रहा है? बताओ सर मैं बच्चों, मैडम सब्जेक्ट एक्स्ट्रा चेंज क्या लगा रही चेंज। हैं? बच्चों तो मैडम एक्स्ट्रा क्या देशभक्त लगा रही हैं बताओ? देशभक्त आर्टिकल लोग आर्टिकल आर लगा रही हैं। अगेंस्ट इस बार भी उन्होंने करप्शन। नहीं सुना क्योंकि वो अपने सेंटेंस को सुधारने में व्यस्त थी। इस पर हमने चर्चा की नहीं थी सर, मैडम से कि आपको सुनना चाहिए। चलिए अब आप हमसे पूछ लीजिएगा। अभी हम 3-4 राउंड खेलेंगे। हु इज अगेंस्ट करप्शन? The bureaucrats are against corruption. The bureaucrats are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार के खिलाफ। ब्यूरोक्रेट्स का हिंदी हमें नहीं पता बच्चों, किसी को पता? परेशान मत होइए, गूगल करके ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, हु विल शेयर? ओके, साकेत, सौम्या both. Soumya, who is against corruption? Officers are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है सौम्या? Officers भ्रष्टाचार के खिलाफ। साकिब भैया, who is against corruption? We people are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं।
मैडम, who is against corruption? Doctors are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? डॉक्टर भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं. Sir, who is against corruption? Hardworking businessmen are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? परिश्रमी व्यवसायी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं. Soumya, who is against corruption? Honest politicians are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? ईमानदार पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं. भैया, हु इज अगेंस्ट करप्शन? Some social groups are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? कुछ समाज सेवी संस्थाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं. मैडम, who is against corruption? Indian Army is against corruption. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? भारतीय सेना भ्रष्टाचार के खिलाफ है. Sir, who is against corruption? Well, some sensible citizens are against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? कुछ समझदार नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं. सौम्या, हम यहाँ से नाउन बदल रहे हैं, लेकिन आपके अवेयरनेस का इम्तिहान चलेगा. Who is against dowry? People who are not greedy are against dowry. दहेज के खिलाफ कौन है? ऐसे लोग जो लालची नहीं हैं वे दहेज के खिलाफ हैं. भैया, हु इज अगेंस्ट डाउरी? Some intellectual people are against the dowry. Against dowry. अभी जो मेहता मैडम लगा रही थी अनावश्यक, Sorry. वो Some आप लगा रही. intellectual people are against dowry. दहेज के खिलाफ कौन है? कुछ बुद्धिजीवी वर्ग दहेज के खिलाफ हैं. मैडम, who is against the dowry? Who is against dowry? Learned person are against dowry. दहेज के खिलाफ कौन है? पढ़े लिखे लोग दहेज के खिलाफ हैं. Sir, who is against dowry? Every poor father of a girl is against dowry. दहेज के खिलाफ कौन है? हर गरीब बाप बिटिया का हर गरीब बाप दहेज के खिलाफ है. सौम्या, who is against dowry? Girls are against dowry. भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? Sorry, sir. सॉरी. चलो हम 3D देखते हैं, ठीक है? बहुत दिन हो गए. हनी इज नॉट फॉर एस's mouth. Google is not typing properly. Yeah. S. Honey is not for S's mouth. Okay, it will do.
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। लाइक ड्रॉस लाइक, चोर चोर मौसेरे भाई। सौम्या, हु इज अगेंस्ट डावरी? Girls are against dowry. दहेज के खिलाफ कौन है? लड़कियां दहेज के खिलाफ हैं। ये कितनी अच्छी घटना हुई, इसको आपको ध्यान देना चाहिए मेहता मैडम। साकेत, आपको भी इसे ध्यान देना चाहिए। सौम्या की जगह कोई और होता तो वो कहो संकोच में सॉरी बोलते ही नहीं कि सर ने बोला है यार, द बॉस इज ऑलवेज राइट। अब स्लिप हो जाता है, इंसान है, स्लिप हो गया। करप्शन बार बार आ रहा था, सामने लिखा हुआ भी है, करप्शन आ गया। उसने फट से नोटिस किया कि डावरी का राउंड चल रहा है और सर ने भ्रष्टाचार बोल दिया, हिंदी में भ्रष्टाचार निकल गया मुझसे। तो ये जो चीज है, ये जिस दिन मेहता मैडम आपकी एक्टिव हो जाएगी, साकिब आपकी एक्टिव हो जाएगी, हम फिर से कल के वीडियो का रेफरेंस देंगे साकिब। चाहोगे तो हम उसको पूरा दिखाएंगे भी तुम लोगों को, जो तुम खुद भी देख सकते हो। अपलोड है वो, उसी में मिल जाएगा अपने चैनल में। तुम देखना, तुम एक मन से लगा के एक के बाद एक इंटरेक्टिव इडियम बोले जा रहे हो। तुम इससे बिल्कुल लेना देना नहीं कि सौम्या क्या बोल रही है और मेहता मैडम क्या बोल रही है, बिल्कुल नहीं सुन रहे हो तुम। और मेहता मैडम भी यही कर रही, वो तो स्क्रीन की तरफ भी नहीं देख रहे, केवल अपना रजिस्टर में देख के एक के बाद एक बोलते ही जा रहे हैं। केवल सौम्या अलर्ट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौम्या आस्क। भैया, who is against dowry? Police are against dowry. दहेज के पुलिस आर खिलाफ अगेंस्ट, कौन है? पुलिस दहेज के खिलाफ है। मैडम, हु इज अगेंस्ट डाउरी? मैम, यू आर म्यूटेड। Politicians are against dowry. दहेज के खिलाफ कौन है? नेता दहेज के खिलाफ हैं। Who is against dowry? Sir, who is against dowry? मैम, Jain society is against dowry. My sentence is not fact, केवल मैं सब्जेक्ट रख रहा हूँ। Jain दहेज की society is against dowry. दहेज के खिलाफ कौन है? जैन समाज दहेज के खिलाफ। सौम्या, कुछ नया रखते हैं, तुमसे शुरुआत करें। पूरा राउंड चलाएंगे 2 बार, फिर साथी से कुछ नया रखवाएंगे। तो तुम कुछ सोच के रखो और पहला प्रश्न हमसे ही करो। अगर साकिब या मेहता मैडम के जहन में कुछ अच्छा सा आ गया हो तो पूछिए। हु इज अगेंस्ट एडिक्शन? वेरी नाइस। एवरी parent is against, please come again Saket, I forgot the word. हु इज अगेंस्ट एडिक्शन? Thank you. Every parent is against addiction. नशे के खिलाफ कौन है?
हर अभिभावक नशे के खिलाफ। मेहता मैडम, हु इज अगेंस्ट एडिक्शन? एवरी लेडीज। दोस्तों, ये गलती कभी मत कीजिएगा, एवरी के साथ लेडीज। अगेंस्ट लेडीज इज ए प्लूरल नंबर, उसके साथ एवरी नहीं आ सकता। एवरी शब्द एक वचन होता है। ओके ओके, सॉरी। लेडीज आर अगेंस्ट डिटेक्शन। नशे के खिलाफ कौन है? सब लेडीज नशे के खिलाफ हैं। महिलाएं। सर, हु इज अगेंस्ट डिटेक्शन? सौम्या, दिस इज सौम्या गो आई। सौम्या। Yes, ma'am, I'm here. गुड मॉर्निंग सौम्या। I'm awake, ma'am. सौम्या, हु इज अगेंस्ट डिटेक्शन? Come again, ma'am. हु इज अगेंस्ट डिटेक्शन? All the people except youngsters are against addiction. नशे के खिलाफ कौन है? यंगस्टर्स को छोड़ के सभी लोग नशे के खिलाफ हैं। सौम्या, प्लीज गिव 3D because madam spoke some different word. She said No root, deduction. Deduction, she said. no root, no fruit. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरे खजूर में अटके। कम अगेन, मैम। मेहता मैडम, जैसे साकेत। सौम्या ने आपसे कम अगेन बोला, आप साकेत से कम अगेन बोल। हाँ, आई विल के। साकेत, कम अगेन। Madam, who साकेत। is against? Yes. Madam, who is against addiction? एडिक्शन। लेडीज आर अगेंस्ट एडिक्शन। नशे के खिलाफ कौन है? लेडीज नशे के खिलाफ हैं। सौम्या, हु इज अगेंस्ट एडिक्शन? हु इज Ka- अगेंस्ट एडिक्शन? all the yeah, all the people except youngsters are against addiction. सौम्या, नशे के खिलाफ कौन है? यंगस्टर्स को छोड़ के सभी लोग नशे के खिलाफ हैं। सर, वेट, मैडम आपको सौम्या का सेंटेंस ध्यान से सुनना चाहिए। और आप अगर टीवी देखने के शौकीन नहीं है तो ये वीडियो ही देख लिया करिए एक बार रात में सोते समय। यस प्लीज सौम्या, आस। sir, who is against addiction? सौम्या, BPL wives are against addiction. नशे के खिलाफ कौन है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली पत्नियां नशे के खिलाफ। BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन।
below poverty line, BPL. Saket, who is against addiction? So doctors are against addiction. Very nice. नशे के खिलाफ कौन है? डॉक्टर नशे के खिलाफ हैं। अब आपको कुछ रखना है अपने मन से, नया राउंड आपसे शुरू। आप मैडम से सौम्या पूछेंगे। नो नो नो, मैडम से देखिए, क्रम पे तो ध्यान दे दिया करो यार साकिब। तो सौम्या ने नया हमसे राउंड पूछा, हमने फिर तुम सौम्या से पूछोगे। नहीं, न्यू राउंड था इसलिए। मैडम, हु इज अगेंस्ट पॉपुलेशन? Sorry. Government is against population. जनसंख्या के खिलाफ कौन है? गवर्नमेंट जनसंख्या के खिलाफ है। सौम्या, हु इज अगेंस्ट पॉपुलेशन? अब सर। देखिए दोस्तों, आप लोग क्रम को भी सर, तवज्जो नहीं देते। yes sir, I know but I don't ask you. Sir, who is against population? The taxpayers are against population, overpopulation. जनसंख्या के खिलाफ कौन है? करदाता, करदाता, टैक्स पेयर्स, जनसंख्या के खिलाफ। सौम्या, हु इज अगेंस्ट ओवर पॉपुलेशन? Sir, literate people are against overpopulation. साकिब, जनसंख्या के खिलाफ कोई नहीं होता है, लेकिन कोई भी चीज ओवर होती है तो फिर व्यक्ति उसके खिलाफ जाता है। अब हमारा हिंदी सुनिएगा। सौम्या, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ कौन? अनावश्यक बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ कौन? सर, पढ़े लिखे लोग अनावश्यक बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ हैं। ऐसा होगा, ये हमें करना होगा, क्योंकि हम वैसा अनुवाद तो नहीं करेंगे। हमने इंग्लिश में तो, अब देखो कितनी अच्छी बात है, इंग्लिश में हमने एक शब्द लगाया, ओवर पॉपुलेशन। साकिब, पॉपुलेशन के खिलाफ कौन होगा? कोई नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, बढ़िया है, वो उसके खिलाफ नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन, इसलिए उसके खिलाफ जाना पड़ता है। ओके, it is, I have to ask, right? And I have to ask Saket, Sir, right? हाँ, sir, I yes, have to ask you have to ask. Sakib Bhaiya. Sakib Bhaiya, who is against overpopulation? The unemployed people are against overpopulation. अनावश्यक जनसंख्या के खिलाफ कौन है? बेरोजगार लोग अनावश्यक जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ हैं। Sir, we have to continue this round again. If you think it is enough, we can conclude this. Okay, sir. अगला वाक्य बी पास्ट में जाके लिखिए। Do you have heading of B past? Yes sir. Leave 2 pages for be present. Leave 2 pages. Please mute, madam, because so much noise is coming of turning pages. And thank you.
After leaving 2 pages for be present, write down the heading of be past on the right side of page. बी प्रेजेंट के लिए 2 पेज छोड़ने के पश्चात दाहिने हाथ के तरफ वाले पेज दाएं पेज पर अगला शीर्षक लिखिए बी स्पेस PAST पास्ट बी पास्ट. Soumya, have you written the heading? Yes, sir. I have written the heading. सौम्या, क्या आपने हेडिंग लिख ली है? हाँ सर, मैंने हेडिंग लिख ली है. Ask the same question to Saket. साकिब भैया, have you written the heading? Yes, Soumya, I have written the heading. क्या आपने हेडिंग लिख ली है? हाँ सौम्या, मैंने हेडिंग लिख ली है. मैडम, हैव यू रिटन द हेडिंग? Yes, I have written the heading. क्या आपने हेडिंग लिख ली है? हाँ, मैंने हेडिंग लिख लिया है. Sir, have you written the heading? दोस्तों, एक Have you निवेदन written? है, जब मैं कुछ लिखने या मिटाने में व्यस्त रहूं तो आप अपने में से ही किसी से पूछ लिया करें, भले ही रिपीट हो जाए. Okay. Soumya, have you written the heading? Yes, ma'am. I have written the heading. क्या हेडिंग लिख लिया है? सॉरी मैडम. Come again, ma'am. क्या आपने हेडिंग लिख लिया है? हाँ, मैंने हेडिंग लिख लिख ली है. लिया क्या है. आपने लिख लिया है बोलने में आ, कैसे खराब लग रहा है ना. लिख लिया? क्या आपने हेडिंग लिख लिया? सौम्या, सही करा बेटा हिंदी. लिख ली है, मैम. ओके. क्या आपने हेडिंग लिख ली है? हाँ, मैंने हेडिंग लिख ली है. थैंक यू. I want to ask one question. Who is ready to answer? Sir, I am ready to answer. Thank you. So when B comes in past, what are the forms? Sir, when B comes in the past, the forms are was and were. Wow, thank you. Very nice. सौम्या, बी जब पास्ट में आता है तो किन किन रूपों में आता है? सर, बी जब पास्ट में आता है तो was और were के रूप में आता है. Very nice. Thank you. Ask the same question to Sakshi. Sakit bhaiya, when Mr. B comes in the past, what are the forms? When Mr. B comes in the past, the forms are was and were. जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो किन रूपों में आते हैं? जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो उनके फॉर्म was और were होते हैं. मैडम, when Mr. B comes in past, what are the forms? When Mr. B comes in past, the forms are was and were. जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो फॉर्म्स का कौन कौन से फॉर्म में होते हैं? जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो वाज और वर के रूप में होते हैं. सौम्या, Yes, ma'am. sir, come again, Saket. मैडम, when Mr. B comes in past,
What are the forms? What are Soumya, when Mr. B comes in past, what are the forms? When Mr. B comes in past, the forms are was and were. जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो किस रूप में आते हैं? जब मिस्टर बी पास्ट में आते हैं तो was या were के रूप में आते हैं। मैम, सॉरी, वॉज। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जब तक आप इसको लिखने का सहारा लेती रहेंगी तो ये सर समस्या लिख आपकी हमेशा रहेगी। सौम्या का मिस आंसर बिल्कुल सही है, द आंसर ऑफ सौम्या इज करेक्ट। लेकिन जिस तरह से आपको रिपीट कराना पड़ा, आप लिखने पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो सारे उसके वीडियो उपलब्ध हैं। आप चाहेंगी, आपने अभी हमने जो चेक किया आपके सेंटेंस, हमने इस बैच में इतने सेंटेंस दिए नहीं है जितने आपने लिख लिए। तो उससे क्या हुआ, सेंटेंस आपके पास इतने सारे लिखे रखे हैं। प्लीज इसको ध्यान दीजिए एंड म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस इन बी पास्ट। यह चमत्कार था। Who has to make this sentence? Sir, I have to make this I, sentence. Please go ahead. This sentence is related to be past. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is it. Then I will take the main verb, and the main verb is was. एक सेकंड रुकना बेटा। Last, मेहता मैडम, आप इस चीज को आत्मसात कर पा रही है ना? ये टेंसेस नहीं है, बी चैप्टर टेंसेस नहीं है। और जो हमें 27 साल तक राधा छाप अंग्रेजी में पढ़ाया गया है, इस एम आर सहायक क्रियाएं होती हैं, ये हमें 27 साल से पढ़ाया जा रहा है। होती हैं, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस एम आर सहायक क्रियाएं ही होती है, क्योंकि उस सहायक क्रिया के बाद एक मुख्य क्रिया भी आती है। जैसे अभी स्क्रीन पर आप देखिए, आई एम गोइंग। I is subject, am is helping verb, go is main verb plus ing। तो यहाँ वो सहायक क्रिया है, लेकिन यहाँ सहायक क्रिया नहीं होती। यहाँ वो खुद मुख्य क्रिया है, क्योंकि इसमें होना बताया जा रहा है कि ये क्या था, कौन था, कैसा था, केवल होना बताया जा रहा है। बी चैप्टर में आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ये सब बिल्कुल आ ही नहीं सकता। ये सब टेंस में आता है, क्योंकि टेंस में जो करता है वो कोई काम करता है, टेंस कुछ कार्य करता है। और बी चैप्टर में करता होता है, कौन है या क्या है या कैसा है, या कौन था, क्या था, कैसा था, उसका होना बताया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है ये क्या था, ये चमत्कार था। आगे बढ़ो सर। थैंक यू। lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is miracle. सौम्या, क्या बोलते सब इस सेंटेंस को बोलो जो तुमने बनाया है, तुम्हें एक हल्का सा कहीं कुछ कमी सी नजर आएगी। Yes, sir. Uh, After the main verb, I will take the article, and the यस, article is a.
Lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is miracle. मैम आप जब भी इसको देखना चाहें आप अपनी स्क्रीन को जूम इन कर सकती हैं, जूम आउट कर सकती हैं, क्योंकि जो हम ये बारीक चीजें लिखते हैं अगर वहां पे आपको विजिबल नहीं है और आप निसंकोच बीच में पूछ सकते हैं, और जब भी आप पूछेंगे तो मैं भले ही सीधे जवाब ना दूं, मान लीजिए आपने कुछ पूछा तो कई बार ऐसा होगा कि मैं साकेत से बोल दूंगा साकेत तुम पूरा सेंटेंस बनाओ, तो साकेत पूरा रिपीट करेगा, आपको पूरा सुनने मिल जाएगा, संकोच मत कीजिए। अब बकायदा सब मैंने सही बोला एडजेक्टिव और कैन यू टेल मी द स्पेलिंग ऑफ मिरेकल? Miracle, Miracle. अब देखिए मैडम यहाँ 3 लेटर का सेंटेंस पूरा हो गया, इसमें कोई क्रिया नहीं है, आना जाना खाना पीना कुछ भी क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कोई कार्य नहीं कर रहा। जैसे अभी सब्जेक्ट मैं हूँ, आई एम टीचिंग, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग, तो मैं यहाँ पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, ये टेंस है, लेकिन इसमें कर्ता का कुछ करना नहीं बल्कि होना बताया जाता है। ये वॉज जो है बी का ही रूप, वॉज इज द फॉर्म ऑफ बी। सो मैं यू मेड दिस सेंटेंस, इसको इन्वर्टेड बना के इसको WH बना सकती हो ऐसे ही जुबान से। सर आई कैन ट्राई। मैडम को कोशिश करने दें। WH है सर। हाँ, वाई वाज इट ए मिरेकल? चलिए थैंक यू, म्यूट कर लीजिए। सौम्या, व्हाट वाज इट? हमने बना दिया। Sir, it was a miracle. सौम्या ये क्या था? सर ये चमत्कार था। ओह आई सी। साकेत भैया, what was it? सौम्या इट वाज अ मिरेकल। ये क्या था? सौम्या यह चमत्कार था। मैडम व्हाट वाज इट? इट वाज ए मिरेकल। मैडम यह क्या था? यह चमत्कार था। सौम्या, व्हाट वाज इट? It was a miracle. ये क्या था? ये चमत्कार था। थैंक यू। प्लीज राइट डाउन द सेकंड सेंटेंस इन बी पास। बी पास में दूसरा वाक्य लिखिए। क्या वह स्मार्ट था? क्या वह स्मार्ट था? Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Please go ahead. This sentence is related to be present. Very nice. It is an inverted sentence. I will ask 2 questions. It will do? Yes, sir, it will do. मैं 2 सवाल पूछूंगा, चलेगा? हाँ सर, चलेगा। And I will ask these 2 questions always. और मैं ये 2 सवाल हमेशा ही पूछूंगा।
सौम्या, आपने कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर इस वाक्य के शुरू में क्या शब्द है इसीलिए। थैंक यू वेरी मच। इस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा है? इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। सर इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को तो नहीं रखते? नो सर, नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि यहाँ तो मैं हेल्पिंग वर्ब तो मिलने वाली नहीं, होती ही नहीं है, तो कहाँ से ले आप? अब अगर शुरू में तुम लोग को हमारी कुछ चीजें अजीब लगी हो, तो अब थोड़ा सा कलेजे में ठंडक पहुंच रही है। पूरे बी चैप्टर में यहाँ पे अभी जितने सेंटेंस मेहता मैडम ने लिख के रखे हुए हैं, दूसरे बैच के हैं, उससे एक्चुअली रेनू से ले लिए हैं। उसमें पूरे ध्यान से अगर देखें तो उसमें कहीं पे हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ही नहीं दूर दूर। तो चलो, वेरी नाइस। इसमें सहायक क्रिया होती ही नहीं है। सौम्या, गो अहेड। Firstly, I will take the main verb, and the main verb is was. Thereafter, I will take he. Lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is smart. At the end, I will put full stop, and the sentence is was he smart? Soumya, would you like to put full stop? Sorry, sir. No. At the end, I will put question mark, and the sentence is was he smart? Okay, Soumya, was he smart? Yes, sir. He was smart. क्या वो स्मार्ट था? हाँ, वह स्मार्ट था। Why was he smart? Sir, I don't know, but he was smart. गुड 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 गुड। हर बार जरूरी नहीं है कि हम अपने इंटेलेक्चुअल का परिचय ही दें। यहाँ पे अपना मूल उद्देश्य इंग्लिश बोलने का। तुमने ये बोल दिया कि आई डोंट नो व्हाई वाज ही स्मार्ट, तो आपने इतनी इंग्लिश तो बोल ही ली, जरूरी नहीं है। हाँ, अब राउंड एक बार और हम चलाएंगे, तब तक कुछ अच्छा आंसर सोच के रख लो। जो दे देगा अच्छा आंसर उसका भी स्वागत है, जो नहीं देगा उसका भी, उसको कोई दंड नहीं। वह क्यों था स्मार्ट? सर मुझे नहीं पता वह क्यों स्मार्ट था। साकिब भैया, was he smart? Yes, Soumya, he was smart. क्या वह स्मार्ट था? हाँ, वह स्मार्ट था। Why was he smart? Because he was very intelligent. वह स्मार्ट क्यों था? क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। मैडम, was he smart? Yes, he was smart. Why was he smart? He was smart because he's he was tall and And intelligent. handsome. He मैडम, was tall and intelligent, so he was smart. मैडम क्या वह स्मार्ट था? हाँ, वह स्मार्ट था वह क्यों स्मार्ट था? क्योंकि वह लंबा और होशियार था। मैडम प्लीज आस्क मी। Was he smart? Yes, of course, he was very smart. Why was he smart? Sorry। आप हर बार सीक्वेंस Wha- को प्लीज ध्यान रखिए ना, सीक्वेंस से चले, एक एक, वन बाय वन। वो क्या वह स्मार्ट था? हाँ, बिल्कुल।
वो बहुत स्मार्ट था। Why was he smart? ही वॉज स्मार्ट। देखिए बच्चों, आंसर यहाँ से शुरू कीजिए, क्योंकि बिकॉज क्या है पता है बेटा? बिकॉज इज अ कंजंक्शन, Conjunction. और कंजंक्शन हमेशा दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच में लगता है। तो इधर भी एक सेंटेंस रखिए, फिर बिकॉज लगाइए, फिर इधर रखिए। फिर से सुनिएगा। ही वॉज स्मार्ट बिकॉज his father was a military man. वह स्मार्ट क्यों था? वह इसलिए स्मार्ट था क्योंकि उसके पिताजी फौजी अफसर थे। एंड एज यू नो, द मिलिट्री पीपल आर disciplined and smart. And I want to tell you one more thing. As Saket, Madam, please mute yourself. As Saket answered, he was intelligent. Guys, do you know one person can be so intelligent, but he cannot be smart? Okay, let's talk something about smart. It reminds me. And Madam said, Pramila Madam said, he was tall. Guys, I think you don't know the real depth meaning of smart. Let's discover today. Smart means a person who is sincere for himself and sincere for others. CC on कर लीजिएगा. And for motivative for himself and motivative for others. A for just a minute. R. R for regular for himself and regular for others. T for time bound for himself and time bound for others. And A for active for himself and active for others. जिसमें इतने गुण हो, he or she is smart. Should I repeat? हालांकि रिकॉर्ड हो गया है, अगर आपको दोबारा सुनना है तो पूरा वीडियो देख लीजिए या उसको खिसका के यहाँ तक ले आइए, देख लीजिएगा. दिस इज स्मार्ट. कपड़े से, चेहरे से, पाउडर लगाने से कोई स्मार्ट नहीं होता है. अंदर के गुण है स्मार्टनेस, इज इनसाइड क्वालिटीज. These are 1, 2, 3, 4, 5 qualities. Okay. Soumya, was she smart? Yes, sir, she was smart. क्या वो स्मार्ट थी? हाँ सर, वह स्मार्ट थी. Why was she smart? Sir, she was smart because she believes in exploring new things. वह स्मार्ट क्यों थी? वह स्मार्ट इसलिए थी क्योंकि वह हर रोज कुछ नया खोजने में विश्वास रखती थी. साकिब भैया, वॉज शी स्मार्ट? नहीं बेटा, हमने शी रख दिया अचानक बदल के. तो मुन्नू रख दो, गुड्डू रख दो, पप्पू रख दो, सब्जेक्ट बदल दो ना. साकिब भैया, वॉज पप्पू स्मार्ट? Yes, Soumya, Pappu was smart. क्या पप्पू स्मार्ट था? हाँ, पप्पू स्मार्ट था. Why was he smart? He was smart because he was very attentive. वह स्मार्ट क्यों था? पप्पू स्मार्ट था क्योंकि वह काफी अटेंटिव था. बिल्कुल सही. नाउ आई अग्री विथ यू 100%. If anybody is attentive, he or she can be smart.
दिस इज ट्रुथ। अटेंटिव मीन्स सतर्क एकदम, अपने आसपास की घटना या जो भी चल रहा है जहाँ वो है उसको बिल्कुल बारीकी से अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अटेंटिव है, और अगर वो अटेंटिव है तो खट से वो स्मार्टनेस आ जाता। आई एग्री विद दिस आंसर, इट इज नाइस। मैडम, was Sanjay smart? मैडम, Yes, Sanjay was smart. क्या संजय स्मार्ट था? हाँ, संजय स्मार्ट था। Why was he smart? He was smart because he does his active very carefully. Please come again, ma'am. Sanjay was smart because he does his action very carefully. वह क्यों स्मार्ट था? वह अपने एक्शन बहुत ध्यान से करता था। सर हिज एक्टिव, ये भी कह सकते हैं ना। He takes his action very. नहीं, वह सर आप इसके पहले कि आप कुछ बोल रहे, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब रोज हम 2-2 3-3 राउंड खेलेंगे, तो अगर आज आपसे कुछ चूक जाता है तो वो अगले के लिए आप बचा के रखिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपके दिमाग में पहले से हिंदी आ गया तो चूंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, आप लंबे समय से बोल रही हैं, तो वो आसानी से बन जाएगा हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में अभी तो आप भी पास में ही है, बहुत कुछ आपने सीखा नहीं, ना पैसिव वॉइस सीखा है, ना पैटर्न सीखे हैं, ना अभी पूरे टेंस मिले हैं। तो जैसा आप बोलना चाहती हैं हमेशा वैसा नहीं बोल पाएंगी। हमने इसलिए सरल सा उत्तर दिया था कि ही वॉज स्मार्ट बिकॉज हिज फादर वॉज अ मिलिट्री मैन। हम बी पास से बाहर नहीं गए। देखिए, हम चाहते तो इतना बड़ा उत्तर दे देते, नहीं दिया। तो अभी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जितनी चादर हो अभी उतना पैर फैलाइए, फिर 2-4 चैप्टर हम आगे चले जाएंगे तो फिर बड़ा आंसर दीजिएगा। इसको ऐसा लेके चलिए, बल्कि इसको देख लीजिए, ये जो हमने पोस्टर लगा के रखा है ये उसी बात की ओर संकेत करता है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं। A little progress every day, a little progress every day adds up to big results। नीचे पेड़ के नीचे लिखा है adds up to big results। इसका अर्थ ये हो रहा है कि प्रतिदिन की गई छोटी छोटी सी प्रगति बड़े परिणामों को जन्म देती है। उसमें देखिए, वो बच्चा, ऐसा नहीं है कि पौधा लगाते ही साथ उसको फल मिल जाएगा। पहले चित्र में आप देखिए, उसने पौधा लगाया, फिर उसको प्रतिदिन पानी दे रहा है, खाद दे रहा है, देख रेख कर रहा है, फिर एक दिन जाके वो पेड़ बनेगा, तब जाके उसको बड़े परिणाम प्राप्त होंगे। ये हर बच्चे को तब मैं बताता हूँ जब वो बहुत ज्यादा आतुर हो जाता है, एकदम से वो ये अपेक्षा करने लगता है कि मैंने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर ली तो मैं वैसा बोलने लग जाऊं जैसा मेरे मन में हिंदी में आता है ना। तो वो धीरे धीरे आएगा। जैसे अब रेनू बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गई है, तो एक दिन आप भी पहुंचेंगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा थोड़ा करिए, है ना। आप मुझसे पूछिए, अपन आज की क्लास यहाँ समाप्त करें। was he smart? कम अगेन प्लीज, वॉइस वॉज शॉकिंग। Was he smart? अच्छा, आप 3 का दंड दीजिए।
ही सब्जेक्ट को तो हमने कितनी देर पहले So there you are. Kill two birds with one stone. तुम दोनों को भी 3-3 कर देंगे। तुम दोनों ने कंप्लीट द प्रोसेस नहीं बोला और उनकी आदत नहीं है कंप्लीट करने की। तुम दोनों भी अभी देना 3-3 कर देंगे। तैयार हो जाओ। So there you are. अब आए समझ में, अब आए ना रास, अब आए ना समझ, इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरा आए ना समझ में, अब आया ना। ओके, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो शिकार करना। ये ऑल एक्सेप्ट नहीं है, इसको भी आपने गलत बोला है। तीसरा बोलिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर ये चमकती हुई चीज, ठीक हो गया। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितनी चादर उत, उतना ही पैर पसार है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अभी छोड़ देते तुम लोगों को। मैडम पूछिए मुझसे सवाल, मैं एक आंसर देता हूँ, फिर आज की क्लास समाप्त। तुम लोग व्हाट्सएप में देना 3D। हु वॉज स्मार्ट? नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप बिल्कुल सर रह जाते हैं। अभी हम इन्वर्टेड में हैं। वॉज, ओ सॉरी, वॉज वॉज राम स्मार्ट? आप 20 का दंड व्हाट्सएप में दीजिए, आज दीजिएगा, नहीं तो कल मैं क्लास में एडमिट नहीं करूंगा। नमस्कार। Saket, come again. Saket, come again.